Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Engineer Saima Khoro. I'm lecturer in Indus University in the Management Sciences Department. Today it is my honor to host an online Gupshup session with our honorable guest, Miss Mehwish Jabin. Ladies and gentlemen, it is my honor to host such a great session. I am really thankful to my students of BBA first semester. Viewers, when we say emotional intelligence, the book definition is emotional intelligence is the ability to recognize and control emotions and behaviors while being aware of how those impact and affect others around us. Today, our honorable guest is Miss Mavish Jabin. She is an assistant professor in Caspit University. She is also giving her valuable services in various STEAM universities such as IBA, Zabist, and University of Karachi. She has moderated many seminars and conferences, being as a co-chair Community Services Rotary International 2020-21. She believes that future belongs to emotional intelligence. Ma'am, it is my honor to be the host of this session. I welcome you to please share your valuable thoughts on emotional intelligence. Sana, I'm very glad that you have touched the topic, which is somehow taboo in our society because when we talk about emotional intelligence, so लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि what is emotional intelligence is and how we can control our emotions, our strengths, our weaknesses, incompatible with the others' emotions. ये तो बहुत मुश्किल काम है ना कि अपनी इमोशंस के थ्रू दूसरों को कंट्रोल करना या दूसरों की इमोशंस के थ्रू अपने आप को कंट्रोल करना. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है. इस टॉपिक को आई थिंक इस वक्त सबको समझना बहुत जरूरी है. Good. As we all are in living in an era where COVID striked us at very hard. हम सब मेंटली इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं. आई थिंक जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट्स, एज अ वर्कर, एज अ स्टाफर्स, एज एन बिजनेस ओनर्स, हम सब के सब जिस एक चीज़ से बहुत परेशान है वो ये कि हमारी सस्टेनेबिलिटी क्या है. हम बहुत परेशान हैं कि हाउ वी गो विद दिस. 2020 is past, 2020 is over, but what about 2021? What about 2022, 23, 24? Like, this is not a first pandemic or this is not a last pandemic. Spanish flu was there और उसके बाद हमारे पास ये pandemic आया और as per researches, this pandemic is not the last one. This is a beginning. इस वक्त पूरी दुनिया में ये रिसर्च हो रही है कि ठीक है 2021 तो गुजर गया, 2020 तो गुजर गया, अब 2021 को हमने किस तरह हैंडल करना है. फर्स्ट वेव में वी वर नेव, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसको रिएक्ट कैसे करना है, इस पे एक्ट कैसे करना है, इसको इनकाउंटर कैसे करना है. सेकेंड वेव में हमें इतना पता चल गया कि इस पे रिएक्ट नहीं करना बल्कि इसको रिस्पॉन्ड करना है. सो कनेक्टिंग दिस विद योर टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आज तक तो हम यही सुनते आए हैं ना कि IQ इज वेरी इंपॉर्टेंट. You know, this word is first coined by Meyer in 1990, and then it was used by and it was researched by Daniel Goleman in era of 90s when he was working with New York Times. और वहाँ he came across with the research of the Meyer, which was conducted by them in 1990, and
he came to a thought that what is this emotional intelligence? Because intelligence quotient is important, yes. How we deal with others, how our intelligence, how our quantitative skills work, और जिस तरह से quantitative skills work करती हैं उसी तरह से हमारी promotions होती हैं, उसी तरीके से हम excel करते हैं अपने career में. तो I think emotional intelligence के क्या काम है? बिल्कुल. Emotional intelligence क्यों है? I know you have many students with you. Yes, ma'am. और स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी मुश्किल काम है क्योंकि वो कैसा ऐसे एज में है, ऐसे सिनेरियो में है, ऐसे हालात में है जहाँ पर, और बाय द वे दिस इज अ डिमांड ऑफ द एज आल्सो, कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. एवरीबडी वांट्स चेंज एंड नोबडी वांट्स टू चेंज. एवरीबडी वांट्स कि हमारी सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, हमारा जो करियर है वो एक्सेल करे, हम जिसके साथ भी बात करें वो बात इन्फ्लुएंस करे, बट वी डोंट नो हाउ टू डू दिस, हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू मेक ब्रेन वेव्स विद देम. इशू है ना, बहुत बड़ा इशू है. मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं कोई बात कर रही हूँ, बात सबको सुननी चाहिए, और ना सिर्फ सबको सुननी चाहिए बल्कि उस पर सबको अमल भी करना चाहिए, और मेरी बात को बहुत वैल्यू भी करना चाहिए, और मुझे एक सुपीरियर पोजीशन भी मिलनी चाहिए. ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही. स्पेशली हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तो बड़ी जल्दी में, दे आर इन वेरी हरी एंड दे आर लाइक, जो कल मिल रहा है वो आज मिल जाए, जो आज मिल रहा है वो अभी मिल जाए. बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसे ही है ना? I don't know, those who are listening, I can't see you, but we all have one thing in our hands these days, वो है हमारा हैंड्स फ्री. हमारे हैंड्स फ्री हम सबके पास होते हैं, हमारे पॉकेट्स में होते हैं, हमारे बैग्स में होते हैं, हमारी टेबल्स पे होते हैं. हम एयरबड्स यूज कर लेते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव में हम ब्लूटूथ यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम रिलाई कर रहे होते हैं कि एक वो जो हैंड्स फ्री हमारे पास है हमारी टेबल पे, हमारी पॉकेट में हो, एज एन इमरजेंसी केस. बिल्कुल. यू नो, और जब वो हमारे पास होता है तो बड़ा इंटेंगल हुआ होता है, उलझा हुआ होता है. जब भी हम उसे बैग से बाहर निकालते हैं, जब भी हम उसे पॉकेट से बाहर निकालते हैं, जब भी हम उसे यूज करने बैठते हैं, तो हम उसको इतना इंटेंगल हुआ होता है, हम उसको सुलझा रहे होते हैं, उसको खोल रहे होते हैं. यू नो, सेम गोज विद आवर लाइफ. बहुत सारी इमोशंस हमारे पास है, बहुत सारी फीलिंग्स हमारे पास हैं, जो हमारा ब्रेन भी क्रिएट करता है, जो हमारा हार्ट भी क्रिएट करता है, जो कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव दोनों हमारी स्किल्स को अफेक्ट करते हैं. कॉग्निटिव थिंकिंग भी है, नॉन कॉग्निटिव थिंकिंग भी है. साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं, हम नॉन कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स और इमोशंस की बात कर रहे होते हैं. तो हमारे पास जो ये हैंड्स फ्री है ना, जिसके तार बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, जिसको हम टैंगल एंड कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हमारी इमोशंस होती हैं, हम उसे भी टैंगल और इंटेंगल कर रहे होते हैं. एंड इट डिपेंड्स, हम खुद ही उलझते हैं, खुद ही सुलझते हैं. ह्यूमन है ना, एज एन ह्यूमन बीइंग हम खुद ही बहुत सारी चीजों के डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत सारी चीजों के परसेप्शंस बना लेते हैं. हम खुद ही बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, उनके रिएक्शंस करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. यू शुड नो हाउ टू रिएक्ट, you should know how to respond, you should know when to react, when to respond. प्रॉब्लम्स वहां आती हैं जहां हम रिएक्शंस देना स्टार्ट करते हैं, हम सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं. जब हम सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, देन हम इमोशनली इतने इंटेलिजेंट हो चुके होते हैं कि हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, सामने वाले के इमोशंस के अकॉर्डिंगली उसको मास्टर करते हैं. जी साना, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात सही है, क्योंकि अगर हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, या जो सिचुएशन अगर आ रही है तो हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, बिल्कुल रिएक्ट ना करें कि हमें फ़ौरन ही बगैर सोचे समझे, पहले हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें
यही क्वालिटीज़ आप देखेंगे लीडर्स में नज़र आती है, या मैनेजर्स होते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो हम लोग फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं, उससे हमें नुकसान का भी बहुत हमें उठाना पड़ता है। Yes. Acha, what comes in your mind when it comes to a perfect leader? You might picture someone who never let his temper out, right? No matter what is the condition, no matter what kind of a pressure he or she is facing, मतलब हम लीडर से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि प्रेशर कुछ भी हो, he never get out of the temper, right? Or Right. someone who have a complete trust on her, or his or her team, who always come in front to help their teammates, their subordinates, their workers. यही आता है ना हमारे दिमाग में. We always think that leader is something which is supernatural. You know, the one who can master his or her own emotion is a leader. The one who can take decisions in pressures, in difficult situations, is a leader. सेल्फ मैनेजमेंट का, ये टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. मैं हमेशा स्टूडेंट्स से एक बात कहती हूँ, और ये बात मेरे लिए भी है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मेरे आपके लिए भी है और सबके लिए है. जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज हु एम आई, हु आर यू, व्हाट आर माय स्किल्स. इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल ट्रेट नहीं है, इट इज अ स्किल सेट. ये वो स्किल सेट है जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है. हु एम आई, what I am doing, all the W questions, why I am here. Let's suppose if I have chosen to to go for the MBA, why? What was the purpose? If you have chosen to be an electrical engineer or engineering program, to go with the engineering program, why? What was the purpose in your mind? What was the scope? What was the significance? What kind of a contribution you were thinking to give to the society? First thing, जो लीडर्स के साथ एसोसिएट की जाती है, रादर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएट की जाती है, इट्स अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट. सेकेंड थिंग, सेल्फ अवेयरनेस. थर्ड, द स्किल सेट्स. जो स्किल सेट्स आपके सामने होने चाहिए, impulsive control through my facial expression. You know, we as a human, we are very difficult to understand. We are the creatures who are very difficult to understand. हम वो क्रिएचर्स हैं जो अपनी इमोशंस को हाइड करने के भी मास्टर हैं, लेकिन हम हाइड कर पाते हैं शायद अपने फेस से, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, हमारे वर्ड्स बता रहे होते हैं. तो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट. Okay, get back to the self awareness. It is very important to know who am I. It is very important to know who you are. अच्छा, ये सारे W क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स आप सबने पढ़ा होगा SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है? मेरा एक इनर एनवायरनमेंट है ना, और एक मेरा आउटर एनवायरनमेंट है. मेरा इनर एनवायरनमेंट जो मेरे स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, मेरी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है. मेरा आउटर एनवायरनमेंट जिससे मेरी पर्सनालिटी बनाई है, मेरा पर्सनालिटी क्वेश्चन है. और ये दोनों मिला के मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस बना रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज हु एम आई. मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं? आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट. नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा इंजीनियर होगा, नॉट नेसेसरी हर बच्चा डॉक्टर होगा, नॉट नेसेसरी हर बच्चा डीबी होगा, नॉट नेसेसरी हर बच्चा एंटरप्रेन्योर होगा, नॉट नेसेसरी कि हर बच्चा आर्टिस्ट होगा. लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आर्टिस्ट नहीं हो सकते, ये भी जरूरी नहीं है कि पेंटर्स नहीं हो सकते, ये भी जरूरी नहीं है कि राइटर नहीं हो सकते. यू नो, एवरी इंडिविजुअल हैज इट ओन यूनिक कैपेसिटी, स्किल, कैपेबिलिटी. कोई ना कोई एक चीज हम सबके अंदर होती है. हमें सब कोई बहुत अच्छा लिखता है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा बोलता हो. कोई बहुत अच्छा बोलता है तो जरूरी नहीं है वो बहुत अच्छा लिखता भी है. कोई बहुत अच्छा लिसनर होता है, कोई बहुत अच्छा कैमोफ्लाज करता है.
कोई बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है, कोई बहुत अच्छा डिबेटर होता है. once Nestle was hiring, or Nestle I think नीदरलैंड में हायरिंग कर रहा था या न्यूजीलैंड में हायरिंग कर रहा था. हाँ, वो हायरिंग कर रहा था and a person came for an interview and the interview was about the marketing manager. They hired that person, और उस person को hire करने के बाद उन्होंने कहा कि we are not hired you for a marketing manager. We hired you to write a literature of our medicines or our products, because you are not very good at speaking, but you are very good at writing. नॉट नेसेसरी. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट स्किल यू है, और आपके अंदर जरूर होगी. अल्लाह ताला ने हम सबको कोई ना कोई स्किल दी है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट स्टेप, हु एम आई, देन कैपिटलाइज ऑन दोज स्किल्स, एनहांस कीजिए. अच्छा, बड़े मजे की बात है, जब आपने मुझे कहा कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करूं, तो इन 2017 at Karachi University I talked about the emotional intelligence, and that was the era, that was the time when talking about the emotional intelligence was like, oh my god, what is this emotional intelligence? How can I control my emotions? How can one can control others emotion? मतलब मैं अपने इमोशन से चलें कंट्रोल कर लूं, अपना गुस्सा, अपनी हंसी, अपनी बात, लेकिन मैं दूसरों के इमोशन कैसे कंट्रोल करूं? Then I came across the literature कि okay, emotional intelligence is a skill set, और उस skill set में सबसे पहली चीज अगेन मैंने आपसे कहा कि who am I? तो जो SWOT analysis होता है ना अपना, what are my strengths, what are my weaknesses, what opportunities I have, and what kind of a threats I am facing. सबसे पहले तो अपना SWOT analysis कीजिए if you want to be a leader, और किसी एक लीडर का SWOT analysis भी उठा के पढ़िए. नेल्सन मंडेला को पढ़ लीजिए, कायदे आजम को पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ लीजिए. आप किसी भी चले, आप स्टीव जॉब को पढ़ लीजिए, आप किसी को भी पढ़ लीजिए और उसका SWOT एनालिसिस पढ़िए, तो उस इंडिविजुअल, उस लीडर, उस रेवोल्यूशनिस्ट, उसको पता होगा कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस क्या थी, और उसने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ अलाइन किया टू अंडरस्टैंड who he is or who she is. Second, self-management. What is self-management? क्या है self-management? What is self-management? और self-regulation, आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं. Know your values. Always stand on your values. You should have a clear vision, clear mission, and clear idea about your life, about your surroundings, about your career. And absolutely उस पर compromise नहीं करना. Stick to your values. Know your values. कुछ code of ethics होते हैं. Socially, morally, ethically, personally. So इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जो हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट कम्स विद नो योर वैल्यूज, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबिलिटी. Nobody is exempt from errors, because when you know your values, when you know your weaknesses, see, as an HR person, I did my MBA in HR, and as an HR person, when I ask my students, कभी भी किसी भी इंटरव्यू में, एडमिशंस के इंटरव्यूज होते हैं, और किसी भी इंटरव्यू में ना, इन फर्स्ट क्लास आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो स्टूडेंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि आई डिड माय बैचलर्स, आई डिड माय इंटर, आई डिड माय सर्टिफिकेशंस, आई डिड माय मास्टर्स, और व्हाटएवर, जो भी इनकी प्रीरिक्विजिट्स होते हैं वो बता रहे होते हैं. नोबडी टेल मी कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. ठीक है, दिस इज माई विजन, दिस इज माई विजन, दिस इज माई आइडिया ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट आई एम. बिकॉज शायद हम बच्चों को ये बताते ही नहीं है, बचपन से नहीं बताते. नो योर सेल्फ, नो योर वैल्यूज,
यू शुड नो कि जी मेरी वीकनेसेस क्या है। अच्छा, और वीकनेसेस भी बड़े मजे की होती हैं। एचआर के इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप अपनी वीकनेसेस बताइए और अपनी स्ट्रेंथ बताइए। और हमारे यहाँ नॉर्मली हम वही वही लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को चेक कर रहे होते हैं और आप उनसे कहते हैं कि यस कंट्रोल एक्शन एंड फीलिंग एंड थॉट्स। यस, तो हम हमेशा वीकनेसेस को क्या कहते हैं, आप जब हमसे वीकनेस पूछी जाती है हम कहते हैं यस मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है और मैं थोड़ा सा हार्डवर्क करूँ। रादर हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के भी बता सकते हैं। When it comes to work, I'm impulsive. When it comes to work, when it comes to deadline, when it comes to goal, I demand hard work from my colleagues or from my teammates. इम्पल्सिव होना, बात याद रखिएगा, हमारे अंदर जितनी हैबिट्स होती है ना उनको ओन करना होता है, ओन करके उसको चेंज करना होता है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते इसीलिए हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। प्रॉब्ली जो मेरे लिए W है वो आपके लिए M है, जो मेरे लिए 9 है वो आपके लिए 6 है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। Always give a space to others to clarify their perceptions and hold yourself for accountability. Don't think that you are superior from accountability. As a teacher, you and me, as a mentor, you and me, we are also accountable. We are not masters in everything. Probably we are learning from our students. So hold yourself accountable. समझिए कि yes, I can make mistakes. Mistake करना बुरा नहीं है. Failure, fail and failing fast is not a bad habit. क्योंकि जब आप फेलियर्स पे जाते हैं, जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो यू लर्न अ लॉट, और उन्हीं से आप नया स्टेपिंग स्टोन लेते हैं, उन्हीं से आप आगे बढ़ते हैं। तो होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल एज अ गुड लीडर, ऑलवेज होल्ड हिज और हरसेल्फ एज एन अकाउंटेबल। एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बीइंग काम, खामोश रहना, पेशेंस। सी, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, वी आर अशरफुल मखलूकात। और जब हम अशरफुल मखलूकात हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त रखते हैं कि हम कंट्रोल कर सकें। क्या हमने हवा में उड़ना नहीं सीखा? क्या हमने पानी की तह में जाना नहीं सीखा? सिखाने वाली वो ज़ात है, लेकिन हमने सीखा। और हमने कैसे सीखा? रेजिलियंस से सीखा, परसिस्टेंस से सीखा, बार बार कोशिश करने से सीखा। तो प्रैक्टिस बीइंग काम। सिचुएशंस आती हैं, हर्डल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, गिव अप नहीं करना, कामली सिचुएशन को एनालाइज करना। जब आप एनालिसिस करेंगे फिर ये एक्सरसाइज करेंगे कि टेक अ डीप ब्रेथ व्हेन इट कम्स टू प्रेशर, व्हेन प्रेशर कम्स टू यू, टेक अ डीप ब्रेथ, राइट नोट्स, राइट पॉइंट्स ऑन अ पेपर। अच्छा, we always complain about the people and the individuals who shout a lot, or who used to vent out, like जो भी उनके दिमाग में है, जो भी वो कहना चाहते हैं, they used to vent out like this, कि they shout, they scream, they abuse. Why it happens? They lack emotion intelligence. They actually don't know about their own emotions. You know, whenever you feel like angry, you feel like upset with somebody, just take a deep breath. Just think about what was the situation. किस सिचुएशन, किन चीजों की वजह से आपको गुस्सा आया, और जो आप कहना चाहते हैं ना, जस्ट पेन डाउन दैट थिंग। लिखिए अपने पेपर पे जो आप कहना चाहते हैं, जो सब आपके दिमाग में आ रहा है। और जब, बिलीव ऑन मी, आप जब उस पेपर को खुद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये सारी बातें कहनी नहीं चाहिए। अच्छा, इमोशन इंटेलिजेंस, IQ, SQ, PQ, यू नो,
we belongs to a religion which is very rich. ये सारी चीजें वो हैं जो शायद हमें बहुत पहले और हमारी पैदाइश से पहले और जब इस्लाम आया, जब दीन आया, हमें ये सारी चीजें जल्दी सिखाई जा रही थी। ये तो अब हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल IQ और इन सारी चीजों में कन्वर्ट किया है, लेकिन ये बहुत पहले हमें सिखा दिया गया था। हमें बताया गया था कि गुस्सा हराम है, प्रैक्टिस ऑफ बीइंग काम, गुस्सा हराम है। क्योंकि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हम शायद अपने बहुत सारे वो रिलेशनशिप्स, वो बहुत सारे कनेक्शंस, वो बहुत सारे लोग, उनको हम हर्ट कर देते हैं जिनको शायद हम कभी हर्ट नहीं करना चाहते। So being a leader, being a manager, being a CEO, it is very important to being calm. Listen others. क्योंकि अगर आप दूसरों को नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप वही वेंट आउट करेंगे जो आपके दिमाग में परसेप्शन है। यू नो, परसेप्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। जो परसेप्शन होता है, जो हम दूसरे के बारे में परसीव करते हैं, हम अपने माइंड में जो पिक्चर रखते हैं उसके बारे में, हम उसी तरह उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसी तरह उसके साथ एक्ट करते हैं और समटाइम उसको रिस्पॉन्ड भी वैसे ही करते हैं। अगर मेरा किसी के साथ ग्रेवियंस है, अगर मेरा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आधा वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, लेकिन मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को मुसलसल सोचती आती हूँ, आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि यार ये हुआ था उस सिचुएशन में, और मैं उस पर्सन के साथ उसी कॉन्फ्लिक्ट को एसोसिएट करती हूँ। तो व्हेन एवर इन माई लाइफ आई मीट दैट पर्सन, उस पर्सन के साथ उसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करूंगी जो उससे 10 साल पहले मैंने किया होगा। इट्स अ ह्यूमन नेचर। That's why EI is here. That's why emotional intelligence is here. That's why emotional intelligence is important. You know, IQ helps you to get the job, but EI या EQ helps you to progress in your job. क्योंकि जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ आप उसी तरीके से रिलेट करेंगे, उसी तरीके से उनके साथ बिहेव करेंगे जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं। Respect is everybody's right, right? Practice being calm and always be careful about your words. What are you saying? Because words कभी वापस नहीं आते जो आपने कहे हैं. So be careful about your words. This is all about your self-management, because once you came to know about yourself, once you come to know about yourself, कि okay जी, I am this. Now what? Manage yourself. Personal branding, self-management. Make yourself a brand, because every individual is unique. Every individual has some unique skill set. Every individual has some unique emotions. कोई ना कोई unique feature होगा, कोई ना कोई skill set होगा. To make yourself a brand. You know, organization these days are not hiring individuals, they are hiring brands. Very true. अच्छा, मैं ब्रांड कैसे बन सकती हूँ? मैं अपने आप को कैसे कैपिटलाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? It's a difficult question. So again it comes to emotional intelligence. Again it comes to your personality. Again it comes to your handling, your connectivity, your communication. Leadership, I always said, हम हमेशा कहते हैं leaders are born. Leaders are born yet made. लीडरशिप भी वो स्किल सेट है जो सीखी जा सकती है, इमोशन इंटेलिजेंस के थ्रू सीखी जा सकती है. यू कैन मेक योरसेल्फ अ लीडर, यू कैन मेक योरसेल्फ अ ब्रांड बाय डूइंग सेल्फ मैनेजमेंट. जब आप सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट पे आते हैं, उस कॉर्डन को आप फॉलो करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट का, जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करती है, जो आपको बताती है कि विच थिंग इज इम्पोर्टेंट, which thing is urgent, which is not important but urgent, which is urgent but not important, and which is not urgent not important. जब उस कॉर्डन के अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ को सेट करते हैं ना. कितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा कितने इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग मी एंड साइमा बोथ, जो हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करते हैं. हम सब भी करते हैं.
ऑल, वी ऑल ना, बेड Yes. साइड पे मोबाइल रखा है एंड वी ऑल यूज टू डू दिस के हम उठते हैं सबसे पहले, चाहे हम अलार्म के लिए देखें, चाहे हम वेदर के लिए देखें, चाहे हम व्हाट्सएप चेक करें, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल को चेक करते हैं। यस ऑल, वी ऑल डू दिस ना। क्या कभी कभी हमने इस प्रैक्टिस को चेंज करने की कोशिश करी है? कभी हमने सोचा है? आपने कभी लीडर्स को पढ़ा है, कभी आपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा है कि वो सुबह उठते क्या करते हैं? दे नेवर लुक एट देयर मोबाइल, दे नेवर लुक एट देयर गैजेट्स। वेक अप, मेक योर बेड, go for your routine jog or walk or juice or a breakfast or obviously as a Muslim do the Fajr prayers, उसके बाद मोबाइल को चेक कीजिए, देखिएगा आपको सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि हम एडिक्टेड हो चुके हैं ना मोबाइल से, हम एडिक्टेड हो चुके हैं गैजेट के, तो सेल्फ कंट्रोल तो यहीं से स्टार्ट करें कि ये प्रैक्टिस बना लीजिए कि सुबह उठ के मोबाइल नहीं चेक करना है, बल्कि उठ के अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करने हैं। यहाँ यहीं से प्रायोरिटी स्टार्ट हो गई, Very true. यहीं से सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई, राइट। जब मैं बार बार अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है, जब अल्लाह ने कह दिया कोई बेकार नहीं है तो कोई भी बेकार नहीं है। हम तो खुद अपनी जिंदगियों को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, हम तो खुद अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज नहीं बना पा रहे हैं। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, देन इट कम्स टू द मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आती है। याद रखिएगा, मुझे कोई भी एंजाइटी से, डिप्रेशन से नहीं निकाल सकता, मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक मैं खुद मोटिवेट ना होना चाहूँ, जब तक मेरी विल मुझे मोटिवेट होने को नहीं कहेगी। एंड अगेन इट इज कनेक्टेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन आई डू कि मैं सुबह उठ के आई एम नॉट रेडी टू चेक माई मोबाइल और आई एम नॉट विलिंग टू चेक माई व्हाट्सएप, आई एम नॉट willing to look at my gadgets, so it means okay, I'm motivated to do something other, something else. And what is something else? Might be मैं वॉक करना चाहूँ, माइट बी मैं थोड़ा सा उठते ही फैमिली को टाइम देना चाहूँ, माइट बी मैं गार्डनिंग करना चाहूँ। क्योंकि देखें, कंप्लेन्स करना बहुत इजी है ना, कंप्लेन्स हम बहुत करते हैं, मैं ये काम कर लेती, ये कर लेता अगर मुझे ये रिसोर्सेज मिल जाते। इट्स अ लॉन्ग डिबेट मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें ये रिसोर्सेज मिल जाते तो हम ये काम कर लेते। क्या मैंने उन रिसोर्सेज को अपने रूटीन के साथ मैच करने की कोशिश करी? क्या मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि मेरे थोड़े से रूटीन चेंज से मुझे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकता है? मैं गार्डनिंग कैसे करूं? मैं तो आई लिव इन एन अपार्टमेंट, आई लिव इन एन फ्लैट, आई लिव इन एन पोर्शन, आई लिव इन समवेयर जहां तो ग्राउंड ही नहीं है, ग्रास ही नहीं है। क्यों? हमारे पास पॉट्स नहीं है। क्या दुनिया में लोग पॉट क्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं? These are the excuses। अब excuses कहाँ से हैं? वही अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ से सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो फिर मोटिवेशन भी नहीं है। बिकॉज सेल्फ मोटिवेटेड वर्कर्स आर दोज हु वर्क कंसिस्टेंटली, हु वर्क्स विद रेजिलियंस। आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। टू नेशन थ्योरी, resolution of Pakistan, and then 14 August 1947. Long, long, long journey. Leader resilient था, leader patient था, leader knows, he knew how to control the emotions of the mob. Mob violent भी हो सकता था। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क्स देयर। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस वहां पे भी था, हम बात आज कर रहे हैं। So when it comes to self awareness, self management, then it comes to motivation। और आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट होती है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है तो सेल्फ मैनेजमेंट में आप अपने आप को री एग्जामिन कर रहे होते हैं, आप री एग्जामिन करते हैं अपने आप को, रीविजिट करते हैं। No, no, Haram, sorry if I'm pronouncing you right, Yes, ma'am. but first impression is not the last impression, believe on me। It counts a lot, it's a psychological factor, it counts a lot।
When you come into the room, when you enter into the room, I look at you and this, that was your first impression, or that is your first impression, that will be your first impression. मैं सारे टेंसेस में आपको कह रही हूँ कि वो आपका इंप्रेशन हो सकता है, था या है, बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग विद यू, व्हेन आई स्टार्ट शेयरिंग माय थॉट्स विद यू, माइट भी मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाए. So never judge person with the physical appearance, never judge person with the first impression. But again, first impression counts a lot. Whenever you go for an interview, do look yourself. याद रखिएगा, being a human, we have very sharp sense that which is called aesthetic sense. ठीक है, और हम हर किसी को अच्छी चीज अच्छी लगती है, आंख को भी अच्छी लगती है, इमोशंस को ट्रिगर करती है. हर किसी के पास होती है ना कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव, वो एबिलिटीज होती हैं हमारे पास जिन एबिलिटीज के थ्रू हम लोगों को जज करते हैं. कुछ होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट, जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटीज भी होती हैं. वो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जो होती है, वो जो लोगों को पसंद करना होता है, जो लोगों को देख के प्लेजेंट पर्सनालिटी को देख के हमें अच्छा लगता है, हम उसे एडमायर करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट that also come in self management. तो सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू अगर आप अपने आप का फर्स्ट इंप्रेशन या सेकंड इंप्रेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, और इट ऑलवेज काउंट्स, इट ऑलवेज काउंट्स. और आपको पता है मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस इसके सबके साथ क्या चीजें कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है एम्पैथी, एम्पैथाइज करना. मेरी जगह पर आके सोचिए, मेरी सिचुएशन में आके सोचिए. हम बहुत सारे डिसीजंस को, पेरेंट्स के, हम बहुत सारे डिसीजन को अपर मैनेजमेंट के, बॉसेस के, लीडर्स के कह देते हैं कि ये डिसीजन मेरे लिए नहीं सही था, ये डिसीजन होना नहीं चाहिए था, मेरा तो सोचा ही नहीं. सी एक्चुअली एम्पैथाइज किया गया. लीडर ऑलवेज एम्पैथाइज, हेड ऑलवेज एम्पैथाइज, अ गुड लीडर ऑलवेज एम्पैथाइज. अगर वो एम्पैथाइज करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे कुलीग, मेरे टीममेट को किस चीज की जरूरत है. लेट सपोज एक डेडलाइन दी जाती है और डेडलाइन में आपको काम करने को कहा जाता है, लेकिन रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते जो उस डेडलाइन को मीट करने के लिए. इट मीन्स आई एम नॉट एम्पैथाइजिंग यू, आई एम नॉट एम्पैथाइजिंग माई टीम. रैशनैलिटी और नॉन रैशनैलिटी की बात आ जाती है ना, रिलेवेंसी की बात आ जाती है. एम्पैथाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर माई शूज एंड थिंक एंड सी व्हाट आई एम फेसिंग. ब्लेम करना इज वेरी इजी, पता है. ब्लेम वीक लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लोग करते हैं जो दूसरों की इमोशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकते. ब्लेमिंग इज वेरी इजी. ट्राई टू डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस. और जब आप एम्पैथाइज करते हैं तो आपकी सोशल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं. जब आप एम्पैथाइज करते हैं तो आपकी सोशल स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए. मैन इज अ सोशल एनिमल, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स. कोविड-19 ने हमें बता दिया है कि आइसोलेशन क्या होती है. In an isolation, we came to the conclusion that we all are social animals. We need our social relations to sustain. We need our social relation to survive. You know, isolation की ही बात अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करूँ ना, तो इस आइसोलेशन ने मेंटली सबको बहुत डिस्टर्ब किया. इस आइसोलेशन ने ऑर्गेनाइजेशंस, फैमिलीज, रिलेशंस सबको अफेक्ट किया. लेकिन अभी आपने सोचा है कि आइसोलेशन तो वो भी है कि जब आप एक रूम में 4 लोग बैठे और एक दूसरे से कनेक्ट ना कर रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर रहे हो. आइसोलेशन तो वो भी है कि जब आप जर्मनी में हो और आप जर्मन ना जानते हो, आप फ्रेंच में हो, आप फ्रेंच ना जानते हो. आई फील आइसोलेटेड व्हेन आई विजिटेड यूएई एंड आई वाज unaware of Arabic language, and I felt like, oh my god, I am isolated. To whom I can relate? मैं किससे बात करूं, मैं किससे अपनी अपनी परेशानी कहूं, because they don't know my language. Okay,
So isolation taught us that we all are social animals. We need social relations. So when we empathize, we create our social relationships. You know, एक मेरी बात याद रखिएगा, networking is a networking. Nobody survives without networking. और नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे किसी बहुत हायर अप से ताल्लुकात हैं. नेटवर्किंग वो है जहाँ मैं स्ट्रेस अपना वेंट आउट कर सकूं. नेटवर्किंग वो है जहाँ से मैं आइडियाज डिस्कस कर सकूं. अनफॉर्चुनेटली वी डिस्कस पीपल, वी डिडंट डिस्कस, वी नेवर डिस्कस आइडियाज. पाकिस्तान इज अ कंट्री जिस जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, बट वी नेवर डिस्कस आइडियाज, वी डिस्कस पीपल. सो ट्राई टू डेवलप योर सोशल स्किल्स. एंड अगेन, दोस्त कौन बनता है आपका? वही जिससे आपकी इमोशंस मैच करती है, जिससे आपकी वेवलेंथ मैच करती है, जिससे आपकी ब्रेन वेव्स मैच करती हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग Very nice. व्हाइल मेकिंग फ्रेंड्स? आप वो जो सेम थॉट्स के लोग हैं, सेम स्कूल ऑफ थॉट है, वही तो एक ग्रुप बनता है. जब यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट डे आते हैं, जब हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं ऑफिस, किसी को भी ज्वाइन करते हैं, और वी मेक फ्रेंड्स और वी मेक ग्रुप्स, तो वो कौन लोग होते हैं? लाइक माइंडेड. हम क्या कह रहे होते हैं? हम उनकी इमोशंस पे बात कर रहे होते हैं. अच्छा, व्हेन वी टायर नॉट, जब हम दोस्तों के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो फिर हम तो उनकी एक दूसरे की इमोशंस का भी ख्याल करते हैं. हमें पता होता है कौन हर्ट हो सकता है, हमें पता होता है कौन इसका बुरा मान सकता है. तो व्हाट वी आर डूइंग इमोशनल इंटेलिजेंस. If a person is pleasant, Talha is asking, if a person is pleasant or he or she can't control his anger, again, no use. क्या आप ऐसे बॉस के साथ काम करना चाहेंगे जो बॉस देखने में बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी रखता हो? She or he is well versed in his her work. He or she has a very nice personality, in fact a very influential personality. When it comes to anger, when it comes to anxiety, he or she can't able to control. Never want to work with that, even though I can't. Even though I think Miss Sama don't want to work with that kind of a person. Emotion के साथ emotional quotient matter करता है. Again, things comes, meanders are here, right? Life is like a meander. जो दरिया और सहरा और रास्ते होते हैं ना, जो गुजरते हैं, टर्न्स होते हैं. Life is like a meander. But the thing is, try to connect emotionally. Okay, कोई गुस्सा कर रहा है तो try to figure out back mind में क्या है. Give them a space. Give him or her a space. Give your colleagues a space. Don't be judgmental. Sometimes हमें किसी की प्रॉब्लम सुनने के बाद लग रहा होता है कि this is not a problem यार. Why she or he is taking on the nerves? But probably वो मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो. So try to empathize. और ट्रस्ट मी, ये जो हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, इट वर्क्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. You know, we as a teachers, we as in mentors, we are preparing you for the real world, for the corporate world, which is very demanding. And there, not only your IQ, your EQ works. As I said, IQ helps you to get the job, but EQ helps you to excel in your job, excel in your career. Be specific to your words. Choose your word before you speak. Respond to the feelings. अच्छा, आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं. आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो मार्केटिंग में बड़े इंटरेस्टेड होंगे, और मुझे खुद भी पर्सनली मार्केट और एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी लगती है. आज का जो टीवीसी है, वो क्या करता है? यूफोन के टीवीसी क्या कर रहा है? मोल्टीफोन का टीवीसी क्या कर रहा है? आजकल आई थिंक टीवीसी में कल देख रही थी डालडा का, वो टीवीसी क्या कर रहा है? दे आर सेलिंग इमोशंस.
They are selling stories. They are not selling products. They are selling stories. They are selling emotions. They are selling their products through your emotions. This is how they are practicing emotional intelligence. सिर्फ एक डेफिनेशन जो हमें डेनियल गोलमैन ने दी है ना, वो डेफिनेशन इनफ नहीं है. अगर आप उस डेफिनेशन की डेप्थ में जाएं, अगर उस डेफिनेशन को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लॉइट करना शुरू करें, अपनी डेली लाइफ से निकालना शुरू करें, तो उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं. आप इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप कहेंगे, ओ यस, दिस इज इमोशनली कनेक्टेड. आई नेवर थॉट ऑफ दैट. मुझे तो कभी आइडिया ही नहीं हुआ कि ये चीज भी हो सकती है. Ma'am, there are some questions like how do we know ourselves? What are the techniques that we use to know ourselves? It's easy to say that we should know ourselves, but what are the techniques you suggest we should go through it and know ourselves? अच्छा, तो सी कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं हमेशा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से एक सवाल पूछती हूँ, मैं आज आप लोगों से भी पूछती हूँ, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ड्रीम जॉब सोची है और सोचा है कि दिस इज एन ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब करना चाहती हूँ. ड्रीम बिजनेस, ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, एक मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में जॉब कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बिजनेस कर रही होती है, राइट? बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में जॉब करता है, वो सैलरी लेता है, वो प्रॉफिट को घर नहीं ले जाता पूरा, वो भी एक सर्टेन अमाउंट लेता है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग बिजनेस, राइट? तो चलें, कितने लोग क्लियर हैं कि दिस इज माय ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वांट टू get the job, or this is the business which I want to do in a future after my graduation or after my first year or second year? कितने लोग हैं? Saman is there. Okay, मैं आपको बताऊं, जब हम बात करते हैं ना कि how get to know कि what kind of a strength I have or who I am. सबसे पहले ये देखना होता है मेरा विजन क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है. क्या मैंने कोई गोल सेट किए अपने लिए? कोई एक गोल, बाय 2020, बाय 2021 मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है. विदाउट अ विजन, विदाउट अ मिशन, यू नेवर गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ. बैठिए, अपने बारे में सोचिए, आप किस चीज में अच्छे हैं ये सोचिए. मैंने कहा ना कि हर बच्चा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होगा. हर बच्चा प्रेजेंटेशन देने के लिए जब डाइस पे आएगा तो हर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी एक बच्चे ने उस ग्रुप में से इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हो जो दूसरों ने दी है. एनालाइज कीजिए. मैंने आपसे कहा ना, आप ये तय कर लीजिए कि सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि मेरा विजन क्या है. मेरे विजन के साथ कौन कौन से, देखिए हमारे साथ ना, हम अगर इमोशनली बात करें in Pakistani culture and Pakistani society, तो we are very connected, very well connected with our families. ठीक है? तो एक हमारा आउटर एनवायरनमेंट और एक हमारा इनर एनवायरनमेंट है. आउटर एनवायरनमेंट में हमारी फैमिली है, हमारे रिलेशंस हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी सोसाइटी है. ठीक है? एक मेरा इनर एनवायरनमेंट है, एक मेरी सोल है, जिसे हम सोल स्पिरिचुअल क्वेश्चन कहते हैं. माय सोल, मेरी सोल किस चीज से कनेक्ट होती है? मेरी सोल किस चीज में हैप्पीनेस फील करती है? मुझे ऐसे लगा कि बीइंग अ टीचर वी ऑलवेज टीच करिकुलम. हम कभी भी एटीट्यूड से बात नहीं करते. हम कहते हैं साइकोलॉजी इज द डोमेन जहां पर एटीट्यूड पे बात होगी, मगर मैं
as a business teacher, as an HRM teacher, as a management teacher, why should I talk about the attitudes? Then I started my thesis on attitudes. बच्चों के attitudes कैसे develop होते हैं? Thing is, know yourself. अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी एक करियर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपके पास बहुत टाइम है. सोचिए आप किस चीज में अच्छे हैं. किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को अपना एम बनाइए. उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस की वेबसाइट को, उसकी बिलोंगिंग्स को चेक कीजिए. चेक कीजिए कि वहां जहां जाना चाहते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना स्टार्ट कीजिए. जब आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तब बाय द टाइम आपको अपनी स्किल्स, अपनी स्किल सेट्स, अपने इमोशंस, अपनी ट्रेड्स सब पता चलती जाएंगी. हम यही तो नहीं करते हैं. मैं जब ग्रेजुएशन कर लूंगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी, वो जो जॉब मिल जाएगी वही मेरी जॉब होगी, मैं अर्न करूंगी 9 to 5 और अच्छी सैलरी लूंगी और मैं घर आ जाऊंगी. what I am giving to the society. मैं सोसाइटी को तो कुछ नहीं दे रही. अच्छा, सोसाइटी को तो वो लोग देते हैं ना जो रिटायर हो चुके होते हैं, वो लोग देते हैं ना जो एज में बड़े होते हैं, वो देते हैं ना जो सोशल वर्क करते हैं. अगर मैं एथिकली गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो भी मैं सोसाइटी को दे रही हूँ. अगर मैं if I am speaking softly, if I am turning the minds of others, if I am molding the emotions of other, or if I am controlling the emotions of other, तभी मैं सोसाइटी को कुछ दे रही हूँ. If I plant a tree, I'm giving to a society. If you are very good at photography and videography, so okay, ये बहुत बड़ा मसला है ना, बहुत बड़ा मसला है. हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं करना चाहिए. You know, I love to play guitar, right? And my family was like, how you girls can't. So then I completed my degree. I completed every educational credential of mine, and then I learned guitar. So आप साइड बिजनेस भी तो कर सकते हैं. अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस. अगेन पेरेंट्स के इमोशन को कंसिडर कीजिए. पेरेंट्स के इमोशन को कंसिडर कीजिए कि वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है इन टर्म्स ऑफ अ डिग्री, और आप चाहते हैं कि आपका शौक पूरा हो, तो पैरेलल ये काम हो सकता है. यू नो, हम लोग बड़ा अपने आप को कहते हैं कि मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ ना, और मैं तो ये तो जॉब कर रही हूँ ना, सेकंड काम कैसे हो सकता है. मल्टीटास्किंग बनिए, मल्टीटास्किंग कीजिए. I'm doing my PhD in entrepreneurship, और entrepreneurship में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है. वो चीज़ ये होती है, वो आपको बताती है कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं. आप अपनी हॉबी, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं. लेकिन एजुकेशनल क्रेडेंशियल उसमें काम करते हैं. विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं होता. सो कंप्लीट योर डिग्री एज द wish of your parents. साइड बाय साइड आप अपना काम कर सकते हैं. आपके पास ई कॉमर्स है, आपके पास क्यू कॉमर्स है, आपके पास फेसबुक है. यू हैव लॉट मैनी प्लेटफॉर्म्स जहां आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं, एंड साइड बाय साइड अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगेन जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे ना, जब आपको ये पता होगा कि क्या चीज कब करनी है, तब आप इसको इजीली कर पाएंगे. Ma'am, I have some questions. Ma'am, first I want to ask that जैसे हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो मैनेजर्स होते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी थॉट्स डिफरेंट होती है और आपकी थॉट डिफरेंट होती है. तो एक जैसे हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन, ये कहा जाता है कि लास्ट इम्प्रेशन है, अलबत्ता होता नहीं है. जैसे जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे वैसे हमारा परसेप्शन दूसरों के लिए चेंज होता रहता है. लेकिन हम उस पॉइंट पर आकर कैसे जो चीफ लोग हैं, टॉप लोग हैं, उनके साथ इंटरलिंक कैसे करें? See, I already discussed this now. कि make yourself a brand. ठीक है. And how?
हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें? जैसे मैंने कहा कि try to be selective. Try to select an organization where you want to join or from where you want to get the job. अच्छा ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने उसके बारे में पता भी कर लिया, उसके बाद मैंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया और आई एम वेरी नेव कि वहां मैं जा रही हूँ तो वहां क्या है. नंबर वन, take a thorough review about that organization. This is an era of internet. This is an era of Facebook. This is an era of google.com. www.com का era है ना ये हमारे पास. वेबसाइट सर्च कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जज कीजिए. इस वक्त सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं. पेप्सी इज द बेस्ट एग्जाम्पल. आप पेप्सी की वेबसाइट चेक करें, आप गूगल की वेबसाइट चेक करें, आप सो मैनी एंड लोकल एंड इंटरनेशनल में बोथ की बात करूंगी. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वेबसाइट्स को आप जब चेक करें तो यू केम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The very important thing is to whom you are interacting. You should know how to interact with that person. And internet is this. We have LinkedIn, we have Facebook. हमें सबकी प्रोफाइल्स, हमें सबके नेचर्स, हमें सबके क्रेडेंशियल्स वहां से अवेलेबल हो जाते हैं. एवरीथिंग इज ओपन. सो थिंग इज, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि व्हेन यू गेट द जॉब ऑफर और कॉल फॉर एन इंटरव्यू, डू विजिट द वेबसाइट, गो फॉर द रिव्यूज, लोगों से पूछिए, लिंक से. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि सोशल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बिकॉज आपकी सोशल कनेक्टिविटी होगी, जब आप लोगों से सोशली कनेक्ट करेंगे तो वो जो नेटवर्किंग है आपकी वो वहां पर हेल्प आउट करेगी आपको. आप ऑर्गेनाइजेशंस के अगर कल्चर को चेक करना चाहते हैं, आप लिंक्डइन चेक कीजिए. आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स को चेक करना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट को चेक कीजिए. आपको वहां से उन ऑर्गेनाइजेशन की ओपननेस का आइडिया हो जाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर का आइडिया हो जाएगा. और कि फर्स्ट इंप्रेशन, ऑल्दो इट इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन, लेकिन अगेन once I was having a meeting with the HR head and he said कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग इंटरव्यू के लिए कमरे में एंटर होते हैं और उनको देखते ही मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि मुझे लगता है बस ये चले जाएं, मतलब इनका इंटरव्यू भी नहीं करना. इवन मैंने उनसे एक वर्ड भी बात नहीं की होती. अगेन, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, जब आप एथिक्स की बात करते हैं, तो आपको पर्सनल एथिक्स पता होने चाहिए. इफ ऑन अ सनी डे, अ ब्राइट सनी डे, आप बहुत ब्राइट कलर्स पहन के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो डू यू रियली थिंक इट वर्क्स? आई स्ट्रिक्टली बिलीव ऑन दैट कि अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है, काउंट करती है. Branded clothing is not a sign for a success. Branded shoes are not a sign for a success. And how you carry yourself is a sign for success. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर को स्टडी कीजिए और उसकी अकॉर्डिंगली ही अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए. दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एज एन एचआर पर्सपेक्टिव में बात करूं आपसे, तो हम जो कुछ अपने रिज्यूमे में लिखते हैं हम उसे डिफेंड नहीं कर पाते. जैसे जो कुछ आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं ना, जो कुछ आप अपने सीवी में लिख रहे हैं ना, उसको एक दफा पढ़ के जाइए. और एक ही सीवी हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाती है. अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, एक ही सीवी हर ऑर्गेनाइजेशन में हर पोस्ट के लिए नहीं होती. टेलर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, इंटरव्यू में अगेन आईक्यू मैटर करेगा, ग्रेड मैटर करेंगे, पर्सनालिटी उससे ज्यादा मैटर करेगी. हाउ यू सिट, हाउ यू टॉक, हाउ यू, नॉन वर्बल क्यूज. इमोशनल इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है नॉन वर्बल क्यूज. कहाँ आप पॉज लेते हैं, कहाँ आप ब्रीथ करते हैं, आप किस तरह बोलते हैं, आप किस तरह बैठते हैं, कितना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, हैंड मूवमेंट क्या होती है, बैग लेफ्ट पे रख रहे हैं, राइट पे रख रहे हैं, आप जो पेपर्स पेन चीजें लेके गए हैं वो कितनी टाइडी हैं, कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपकी शूज टाइडी हैं कि नहीं है. अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अबाउट ब्रांडिंग, इट्स अबाउट केयरिंग योरसेल्फ. कोविड ने दुनिया को ओपन कर दिया है.
We have lot many courses, free courses, which are available on internet regarding your ethics, regarding your interview etiquette, regarding your personal branding, regarding your personal development. Do those courses. Watch videos. And very importantly, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाइए, उसकी हायरार्की के बारे में पढ़ के जाइए, उसकी कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में है उसके बारे में पढ़ के जाइए। सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जब जॉब मिल जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करें। बच्चों को क्या, हमें भी प्रॉब्लम होती है। व्हेन वी स्विच हमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को किस तरह डील करें। स्टे क्वाइट, फर्स्ट लिसन देन स्पीक। पहले ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए। अभी आपकी राय किसी को नहीं चाहिए, पहले आप सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, लोगों के मिजाज को समझिए। देन दैट इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। डोंट बी इम्पल्सिव कि मुझे आता है, मुझे आता है वाला जो टैग है ना, मुझे सब आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करता, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू। सो फर्स्ट ऑब्जर्व, listen, and then speak, then give your suggestions. Be polite with your words, be selective with your words, keep smiling, be presentable. अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज रखिए। छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। हम वही फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वही है कि इमोशनली हम दूसरों से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। One of my friend at IBA, she used to have chocolates and toffees at her table, and everybody is allowed to take. वो एक छोटा सा जेस्चर है, वो सबसे कनेक्ट होती जा रही है। She is a trainer. She know how to connect. She know how to communicate. And this is the little gesture जो एक छोटा सा gesture है जो दूसरों के इमोशंस को जाके हिट कर रहा है कि she is open. वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। So try to figure out what is the organizational behavior and what is the organization culture of that particular organization to which you are going, or to the organization you are approaching. Thank you, ma'am. My second last question is that, ma'am, empathy is very important. लेकिन एम्पैथी जो है उस वो हमारी ईक्यू पे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि किस तरह से एम्पैथी का रोल होगा ईक्यू को बढ़ाने में, अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करने में? See, empathy is the key factor. एक बात याद रखिएगा, जो मैंने सुना वो जरूरी नहीं है सही हो, जो मैंने देखा वो भी जरूरी नहीं है सही हो। The one who is in the situation knows the well. मैं दूर से देख के दो लोगों को समझ रही हूँ वो लड़ रहे हैं, जबकि वो लड़ नहीं रहे हैं, वो पुराने पुराने फ्रेंड्स हैं, वो मिले हैं एक दूसरे से और पुराने स्टाइल में बात कर रहे हैं। बट मैंने सिचुएशन एनालाइज करी, मैंने सिचुएशन जज करी कि दे आर क्वारलिंग, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज empathy or to empathize is very important. सिचुएशन के हर एंगल से बात सोचिए। सिचुएशन का एक एंगल नहीं होता। जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ग्रीवेंसेस कमेटी बनाता है, उस ग्रीवेंसेस कमेटी में या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। वहां पर यही चीज चेक की जाती है कि जो ये वर्ड्स कहे गए हैं या जो बात कही गई है या जो ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके बिहाइंड दीज स्टेटमेंट और बिहाइंड दोज वर्ड्स व्हाट इज द बैकग्राउंड। फिर उस बैकग्राउंड से एम्पैथाइज। ओके, रमजान में आपने देखा है बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल, स्पेशली ट्रैफिक में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होती है ना। हम एक दूसरे को एम्पैथाइज नहीं कर रहे होते, प्रॉब्ली नींद पूरी नहीं हुई है, प्रॉब्ली वी आर ब्लेस्ड। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं रमजान में। दे प्रॉब्ली दे आर that person is worried about the expenses. हो सकता है कि लेट हो रहा हो क्योंकि कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हो सकता है वीकनेस हो रही हो। हम एम्पैथाइज ही नहीं करते।
we start quarreling, हम कॉन्फ्लिक्ट फॉरन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. सिंपैथाइजिंग इज द फर्स्ट थिंग. और उससे इमोशनल इंटेलिजेंस इसी तरह बढ़ाई जा सकती है कि जब आप स्टोरी की दोनों साइड सुनेंगे, जब आप स्टोरी की स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, जब आप उसके वो जो डायसेक्शन होता है ना, जब आप डायसेक्शन करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्टोरी ऐसे नहीं ऐसे थी. That plays an important role in increasing your emotional intelligence. Don't be impulsive. Try to control your impulse. अपने गुस्से को, अपने अपने एंगर को, अपनी खुशी, आपको पता, खुशी भी एकदम बहुत ज्यादा अगर आप शो करते हैं या आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो भी आपकी नेगेटिव उसमें जाती है. बी कंपोज. इमोशंस को वहीं पर शो कीजिए जहां उसकी जरूरत है. जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां से शो करने की भी जरूरत नहीं है. किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि आपसे जब जितना पूछा जाए उतना बताइए, और जब बात आपसे नहीं पूछी जाए उसको तो बिल्कुल जिक्र ना कीजिए. दिस इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आपने जो बातें की हैं इतनी अच्छी, और माशाल्लाह से जो आपकी पर्सनैलिटी है, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ. अल्लाह ताला जो है थैंक यू आपको सो मच बहुत सारी सामा. खुशियाँ दें. और बहुत एक मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, हमारी काफ़ी इंडीड. अरसे से होती रही और इंशाल्लाह रहती रहेगी. Thank you. I'm blessed to have you on this session. Thank you so much. Viewers, ma'am, Miss Mehwish Jameen is an excellent speaker. She is an assistant professor in Casper University. She has diverse talents. She is also studying entrepreneurship. It is my honor to host such a wonderful session, and from my students, we are really thankful to you, ma'am. Thank you so much, Sama, for inviting me. It's always a pleasure to guide the youth because this youth is a pillar for us. And unfortunately, we are not investing in them in terms of advices, in terms of mentorship, in terms of regulating them or guiding them. Thank you so much. I really, really enjoyed this session.